اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ جنات کا پیدائشی دوست میں ہمیں علامہ لاہوتی ایسی حیرت انگیز معلومات اور علم دیتے ہیں جس سے ہم دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور انسانیت کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حاجی صاحب جن کے بیٹے عبدالسلام جن اور عبدالرشید جن کو کہا کہ کبھی مجھے جنات کی سب سے بڑی جیل کی سیر کراؤ، وہاں کیا ہوتا ہے اور جنات کی اصلاح اور جرائم کی روک تھام کے لیے انہیں کیسی سزائیں ملتی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ بات کہی تو کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو ایک عمل کا چلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں ایک جناتی طلسم کیا گیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے اور نہ ہی داخل ہو کر واپس آ سکے، کیونکہ وہاں خود بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں اور ان کے جادو کا طور ہر شخص بلکہ ہر جن کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہو چکے ہیں لیکن ہم عاجز آ گئے ہیں۔ آخرکار ان جنات کو قابو اور باندھنے کے لیے صحابی بابا نے یہ خاص عمل قرآنی کیا کہ اس کو حصار کر دیا۔ اب یہ جیل ایک قلعہ ہے، تو چونکہ ہم جن ہیں اور باوجود جن ہونے کے ہم سب نے یہ عمل چلہ کیا ہوا ہے، اس چلے کی وجہ سے ہم اس جناتی جیل کے اندر آ جا سکتے ہیں، ورنہ تو اس کے اندر جانا ممکن نہیں، اگر چلے جائیں تو واپس آنا ممکن نہیں۔ علامہ لاہوتی کہتے ہیں، میں نے اس عمل کو کرنے کی حامی بڑھ لی۔ اس کے لیے مجھے ایک ویران قبرستان میں 11 دن کا چلہ کرنا تھا۔ چلے کے جو لوازمات ہیں وہ حسب ذیل ہیں: 2 کفن کی چادریں، 1 عدد بڑی شیشی تیز خوشبو والی، 4 عدد تیز دھار چھڑیاں، 1 نئی جائے نماز، 1 سفید ٹوپی، 1 عدد کالے دھاگے کا چھوٹا بنڈل۔ اب یہ چیزیں لے کر کسی ویران قبرستان میں ویران کونا اور ویران قبر کے پاس جا کر رات ٹھیک 12 بجے اپنی جگہ پر موجود ہونا ہے۔ کپڑے اتار کر کفن کی چادریں احرام کی طرح باندھ لیں اور خوب خوشبو لگائیں، سر پر ٹوپی رکھ لیں اور جائے نماز بچھا کر چاروں طرف چھڑیاں مٹی میں گاڑ دیں اور اپنے ارد گرد دھاگا لپیٹ لیں۔ 11 چکر دھاگے کے اپنے گرد لپیٹنے ہیں اور صرف ایک لفظ پڑھنا ہے۔ وہ لفظ ہے کہف، 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 سورہ کہف والا لفظ کہف۔ اسی لفظ کو بغیر تعداد کے 3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد اٹھیں، پہلے چھڑیاں ہٹائیں، پھر لباس تبدیل کر کے یہ چیزیں سمیٹ لیں اور وہ کالا دھاگا جو اپنے اوپر جسم کے گرد لپیٹا تھا، یعنی 11 چکر دھاگے کے دیے تھے، وہ اتار کر رکھ دیں اور واپس گھر آ جائیں۔ پھر دوسری رات اسی طرح جائیں اور سابقہ رات کی طرح کریں۔ اسی طرح 11 راتیں کرنی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لے، کل 11 راتیں اس چلے کو کرنا ہے، تو اس شخص کے لیے جنات کا ہر حصار توڑنا آسان، جنات کی جیل میں آنا جانا ممکن ہوگا۔ کوئی طاقتور جن، جنی، بدروح، دیو، موکل، جادو، نظر بد اور بندوق کا حملہ اس پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر وہی شخص جب اس لفظ یعنی کاف کو صرف پڑھ لے گا، چاہے تھوڑی یا زیادہ تعداد میں، تو جس پر بھی دم کرے گا یا پانی پر دم کرے گا یا کوئی کھانے پینے والی چیز پر دم کرے گا تو فوری اثر ہوگا اور وہ تمام عوارضات ختم ہو جائیں گے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ لاہوتی مزید فرماتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں یہ عمل کیا، چونکہ میرا جناتی پیدائشی تعلق ہے، کچھ انوکھا یا غیر مرئی عمل محسوس نہ ہوا۔ 11 دن کے بعد میں نے عبدالسلام جن اور عبدالرشید جن کو بلایا، ان کے ساتھ حاجی صاحب جن بھی تشریف لے آئے۔ وہ مجھے گردنما پروں والی سواری پر سوار کر کے خود ساتھ ہوا بن کر پرواز کرنے لگے۔ اس سواری پر کئی بار سفر کیا، لیکن اس بار اس سواری میں انہوں نے میرے لیے لاجواب کھانے اور بہترین قہوے بھی رکھ لیے تھے، جو مجھے بارہا اصرار کر کے وہ کھلا رہے تھے۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت لمبا اور بڑا سفر کیا جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ آخرکار مجھے ہر طرف پہاڑ اور برف ہی برف محسوس ہوئی۔ پھر برف ختم ہو گئی اور ہر طرف خشک پہاڑ اور جنگل شروع ہو گئے اور اس کے درمیان ہم ٹھہر گئے۔ ہماری سواری نیچے اتری اور ہر طرف جنگل اور پہاڑیاں اور دوسری طرف برف پوش پہاڑ تھے۔ وہاں ہر طرف جنات کی قطاریں نظر آئیں، چونکہ حاجی صاحب جن اور صحابی بابا جن اور میں ان کے وہاں بھرے اور مہمان خصوصی تھے۔ عبدالسلام جن نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی، لہٰذا وہاں سب حضرات یعنی محافظ جنات متوجہ اور چوکنے تھے۔
जेल क्या थी? एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के दरमियान मीलों फैली हुई वादी थी, जिसके इर्द गिर्द एक ताकतवर हिसार और जिन्नात की ताकतवर फौज थी। अल्लाह मालहूती फरमाते हैं, मैंने वहाँ देखा कि एक नूरानी फसील थी जो आसमान तक पहुँची हुई थी। उसके इर्द गिर्द एक जिन्नाती महलूक थी जो मज़ीद पहरा दे रही थी। हर तरफ ऐसे जिन्नात मौजूद थे जो दिन रात बस पहरा देते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं। एक पहाड़ी गार जिसका दहाना यानी मुंह बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि ऊँट भी आसानी से अंदर चला जाए। इस दहाने पर 17 बब्बर शेर बैठे थे। मैं हैरान हुआ तो अब्दुल रशीद जिन ने बताया कि ये दरअसल बहुत बड़े देव हैं जो इस शक्ल में पहरा दे रहे हैं। जब हम गार के करीब पहुँचे तो वो शेर अपनी जगह से हट गए और अपनी मखसूस आवाज़ में गरजदार अंदाज में दहाड़ने लगे। तो उन्होंने हमें बताया कि ये दरअसल हम सबका इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी हम अंदर दाल हो ही रहे थे कि मैंने चमगादड़ें देखीं जो शायद 10 फुट से भी ज़्यादा लंबी होंगी और ख़तरनाक आवाज़ों के साथ ऊपर मुसलसल उड़ रही थीं। अब्दुल रशीद जिन ने बताया, यह भी जिन्नात की एक किस्म है जो हवाई मुहाफ़िज़ होते हैं और ऊपर से कैदियों और बदमाश जिन्नात पर नज़र रखते हैं कि वो वहाँ से निकल कर ना जा सकें। कुछ और आगे गए तो मालूम हुआ कि सांपों के ढेर और बाज़ जगह सिर्फ काले रंग के बड़े अजदहे की तर्ज के सांप थे जो मुसलसल हर जगह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने बताया, ये भी मुहाफ़िज़ जिन्नात हैं। उनका काम सिर्फ यहाँ के इन जिन्नात की खबर रखना है जो जादूगर हों और जादू की वजह से यहाँ से निकल ना जाएं, या फिर वो यहाँ के मुहाफ़िज़ों पर जादू कर देते हैं। इनमें से हर सांप खुद बहुत बड़ा आमिल जिन है। इन सब को सहाबी बाबा जिन ने ऐसे ताकतवर कुरानी अमलियात करवाए हुए हैं कि कोई जिन इनकी ताकत और जादू तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि जिन्नात के पास आज से 6000 साल पहले का इल्म है और वो इस इल्म के मुताबिक कुछ भी कर लेते हैं। ये आमिल सांप जिन्नात ऐसे ऐसे अमल करते हैं जो इंसानी आमिल तो क्या, कामिल से कामिल के बस का भी रोग नहीं है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा काला सांप अपना फन उठाए चलता हुआ मेरे पास आया। सलाम किया कि मैं मुसलमान जिन हूँ, मेरी उम्र बहुत लंबी है। मैंने शाहजहाँ बादशाह का दौर देखा, जहांगीर का दौर देखा, रंजीत सिंह का दौर तो कल की बात है मेरे लिए। इससे कबल मैंने लोधी ख़ानदान को देखा। ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद और बर्बादी सब कुछ मेरे सामने है। मैंने उस सांप जिन से सवाल किया, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग क्यों बर्बाद होते हैं? बेसाख्ता कहने लगे, इसकी वजह जुल्म होती है। ये लोग दरअसल ज़ालिम होते हैं और जुल्म की वजह से उन सब का निशान तक ख़त्म हो जाता है। एक सांप जो रंगत में नहायत काले रंग का था, वो आते ही मेरे पाँव पर गिर गया और कुछ मखसूस अंदाज में बातें करने लगा। मुझे उसकी किसी भी बात की समझ न आई कि आखिर इसकी बातें क्या हैं और इसका क्या मुतालबा है, इसका क्या मकसद है। अब्दुल रशीद कहने लगा कि ये यहाँ के सांप जिन्नात का सबसे बड़ा ऑफिसर है जो आपको यहाँ खुश आमदीद कह रहा है, और ये कह रहा है कि मेरी तरफ से इंसानों से माजरत कर लें कि मैं उन जिन्नात की निगरानी पर मुतय्यन हूँ जो इंसानों को तरह तरह की तकालीफ देते हैं। अल्लाह मालहूती मज़ीद फरमाते हैं, हम आगे चले तो हमें चीलों का खौल देखने में आया, जो देखने में तो चील थे लेकिन वो किसी बहुत बड़े जहाज़ से कम नहीं थे। उनके मुंह से शोले निकल रहे थे और उनकी आवाज़ बहुत गरजदार निकल रही थी। उनका हजूम नहीं था बल्कि लश्कर के लश्कर थे जो मुसलसल उड़ रहे थे, और एक परेशान कुन शोर था जो हर तरफ फैला हुआ था। चीलों का काम सारा दिन इस मीलों के फैले वसी पहाड़ी रकबे पर उड़ना और निगरानी करना था। वो हर उस जगह पर नज़र रखते थे जहाँ से निकलने का कोई इम्कान हो सकता था। दिन रात उनका यही काम था। इसी दौरान अब्दुल रशीद जिन ने मुझे बताया कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ का सबसे ख़तरनाक पहरा देने वाला ग्रुप है। फिर हमें गार के अंदर एक और गार में ले गया। चलते चलते एक तवील तंग गार से निकले तो एक और मैदान आ गया। इस मैदान में थोड़ी देर चलने के बाद क्या देखा कि चमगादड़ नुमा एक महलूक है जिसकी गर्दन ऐसी है जैसे बतख की गर्दन होती है। बाकी सारा जिस्म चमगादड़ की तरह है। वो जगह जगह एक एक करके खामोश बैठी हुई हैं, बिल्कुल खामोश, जैसे उनमें जान ही नहीं है। मैं हैरान हुआ। साथ हाजी साहब का बेटा अब्दुल सलाम था। उसने मेरी हैरानी को महसूस करते हुए पूछा कि क्यों हैरान हो रहे हैं। मैंने कहा कि हैरत की वजह दरअसल ये है, इनका क्या काम है और ये खामोश क्यों हैं? इतनी लाखों की तादाद में इनकी आखिर तो कोई जिम्मेदारी होगी। ये सारी बातें
हैरत और इस्तेजाबी की कैफियत में बयान कर दी। मेरी हैरत को देखकर अब्दुलसलाम कहने लगा, यही चीज़ तो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये दरअसल खूनख्वार और फाड़ खाने वाली महलूक है। जिन्नात तो लोगों को तंग करते हैं, ये ऐसी महलूक है ये जिन्नात को तंग करने में हरफ़े आखिर हैं। इनका काम ये है, जब भी कोई जिन यहाँ लड़ता है तो उसको पहले ये हल्की सज़ा देते हैं, फिर भरी और भयानक सज़ा देते हैं, और उनके अंदर एक ख़तरनाक मवाद जिसे इंसान की ज़बान में या दुनिया की थ्योरी के मुताबिक फोर्स कहते हैं, पहले आंखों में, फिर कानों में और फिर नाक और ज़ुबान में भर दिया जाता है और उनको काली जंजीरों में बांध दिया जाता है। वो जंजीरें इतनी ताकतवर होती हैं जिन्हें ना तो जिन्नात तोड़ सकते हैं और ना ही इन जंजीरों से जुदा होकर रिहा हो सकते हैं, बल्कि अगर कोई इंसान उसी वक़्त इन जंजीरों को हाथ लगाए तो उसका हाथ जल नहीं जाएगा बल्कि पिघल जाएगा। जिन्नात की खौफनाक चीखें और फरियादें मैंने दूर दूर से सुनी और सोचा कि आखिर ये क्या आवाज़ें हैं। तो मेरी हैरानगी पर अब्दुलसलाम जिन बोला कि ये जिन्नात को सज़ाएं दी जा रही हैं ताकि उन्हें सबक हासिल हो और उन्हें एहसास हो कि किस तरह नाफरमानी पर सज़ा दी जाती है। फिर अब्दुल रशीद जिन खुद ही कहने लगा, मैं आपको उन शरारती और बागी जिन्नात की सज़ाएं दिखाता हूँ। हम गार के एक और दहाने की तरफ चल दिए। जैसे जैसे हम चलते गए, गार का दहाना फैलता गया और अंदर ही अंदर एक आग और गोश्त की तरह जलने की बू आ रही थी। जब हम करीब पहुँचे तो एहसास हुआ कि एक जिन को सज़ा दी जा रही है जो लोगों के घरों से कच्चा गोश्त चुरा कर खाता था, और बेशुमार वारदातें इसी तरह की उसने की थीं, और ये इन वारदातों में बेशुमार दफ़ा रंगे हाथों पकड़ा गया था। इससे कबल भी ये सज़ा पा चुका था, लेकिन हर बार यह सज़ा ख़त्म होने पर अपनी साबका आदत पर बाकी रहता है। इस बार इसकी सज़ा बहुत सख्त और बहुत कड़ी है ताकि इसको नसीहत हासिल हो। हम आगे चले तो इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा थी। इसको देखते ही पहली दफ़ा मुझे पसीना आ गया और दिल में घबराहट शुरू हो गई। या इलाही, इतनी सख्त और इतनी अज़ियतनाक सज़ा मैं गुमान नहीं कर सकता। सज़ा क्या थी? लोहे की कंघी जिसके दंदाने तलवार जितने बड़े थे, यानी हर दंदाना तलवार जैसा था। बड़े बड़े खतरनाक द्यो दूर एक पहाड़ पर चढ़ जाते, फिर वहाँ से तेज़ हवा की तरह दौड़ते हुए आते, और वो जिन जो सख्त रस्सियों से बंधा हुआ था उसके अंदर वो कंघी गार कर वापस खींचते तो सारा जिस्म उधर जाता जैसे रेशा रेशा हो गया हो। सख्त बदबू, चीखें, हौलनाक आवाज़ें, बस एक अनोखा और बदतरीन अजियतों का माहौल था जिसे अल्फाज में बयान किया नहीं जा सकता। हालांकि मेरा बचपन और सारी ज़िंदगी जिन्नाती दोस्ती और जिन्नात के साथ, फिर उनकी शादी, ब्याह, खुशी और मौत, विलादत सब जगह में गुजरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात, तूफ़ान और जिन्नाती लड़ाइयाँ और कारनामे देखे हैं। आग, खून के समंदर और पहाड़ देखें। मैं नहीं डरा, कांपा नहीं, सहमा नहीं, लेकिन ये मंज़र ऐसा था जिसने मेरे अंग अंग और रवे रवे के अंदर एक तूफ़ानी हलचल मचा दी। मैंने पूछा, इसका हर कसूर क्या है? आखिर ऐसा कौन सा ख़तरनाक और बुरा काम किया है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये इंसानी औरतों से ज़ना करता है। हर वो जिन जो औरतों की इज़्ज़तों से खेले, अगर वो पकड़ा जाए तो उसके साथ यही हाल होता है और उसे खूब सज़ा दी जाती है। बाज़ तो इस सज़ा के दौरान मर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि जिन्नात अगर कोई बुराई करते हैं तो उसकी सज़ा होनी चाहिए कि आखिर इससे जिन्नात की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो दोस्तों, ये थी जिन्नाती दुनिया की सबसे बड़ी जेल और उसके अंदर दी जाने वाली इंतहाई अज़ियतनाक और हैबतनाक सज़ाएं जो मुजरिम जिन्नात को दी जाती हैं। आज की वीडियो में बयान किया गया लफ्ज़ कहफ का चिल्ला अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए अल्लामा लाहौती की तरफ से सबको इजाज़त है। अल्लामा लाहौती की तरफ से इस अमल की सबको इजाज़त है। अगर कोई शख्स इसको करना चाहे तो अल्लामा लाहौती की तरफ से उसको इजाज़त है।